Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, force, friction and pressure. Introduction. In our earlier class, we have learned about movement. We have learned to measure how fast or slow an object is moving. Speed indicates how fast an object moves and covers a certain distance. A moving object may change the direction it is moving in. It also slows and stops. What is it that makes an object move, change direction or stop? Is it just a push or a pull? देखिए प्रीवियस क्लास में हमने मूवमेंट के बारे में पढ़ा था. हमने ये भी सीखा कि कितना फास्ट या कितना स्लो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. स्पीड क्या इंडिकेट करती है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस. ओके, एंड मूविंग ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है जिसमें वो मूव कर रहा है, या ये स्लो करता है उसकी या स्टॉप करता है. तो वो चीज़ क्या है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है, उसको स्टॉप करती है? क्या ये जस्ट एक पुश और पुल है? तो इन्हीं सभी क्वेश्चन का आंसर हम जानेंगे इस चैप्टर में. 6.1 Force. Have you ever opened a drawer of a table to keep books and then close it? Have you ever dribbled a basketball or a volleyball? If so, you were doing activities that involve forces. In the first case, you have to pull the drawer in the table to put the books in it and push it back. In the second case, you have to push the ball to the ground to strike it. This push or pull which is applied on an object that may give it energy and cause it to start moving, stop moving or change its motion is called force. If you want to open a door, you exert a force on it to cause it to move. Increasing your force will make it move faster. If you want to keep the door from opening, you exert a force on it. This time the force prevents the door from moving. And if you want to change the direction in which the door is moving, you again exert a force on it. जैसे आप टेबल का ड्रॉर आपने खोला है ना, अपनी बुक्स रखने के लिए, फिर उसको क्लोज कर देते हो. बास्केटबॉल या वॉलीबॉल को कभी ड्रिबल किया है? सो अगर आपने ये सारी एक्टिविटीज़ की हैं तो इन एक्टिविटीज़ में आपका फोर्स इन्वॉल्व है. फर्स्ट केस की बात करें, जब हम ड्रॉर को पुल कर रहे हैं बुक रखने के लिए, फिर उसको पुश कर देते हैं बैक जब हम उसे बंद करते हैं. सेकेंड केस में आप बॉल को पुश करते हैं टू द ग्राउंड टू स्ट्राइक इट. तो ये जो पुल और पुश होता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है तो उसे एक एनर्जी देता है जिसकी वजह से मूव करना स्टार्ट कर देता है, या फिर मूव करना स्टॉप कर देता है, या मोशन के को चेंज कर देता है. तो दिस इज कॉल्ड फोर्स. आप डोर को खोलना चाहते हैं तो आप फोर्स एक्सर्ट करते हैं. ओके, आप अगर फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो वो फास्ट मूव करेगा, राइट. अगर आप डोर को रखते कि वो खुला ही रहे, ओपन रहे, तो आप एक फोर्स को एक्सर्ट करते हैं उस पर. ओके, तो इस टाइम पे जो फोर्स होगा वो डोर को मूव करने से प्रिवेंट करेगा. अगर आप चाहते हैं कि जो डायरेक्शन है जिसमें डोर मूव कर रहा था उसको चेंज करना, तो अगेन आप क्या करते हैं? फोर्स एक्सर्ट करते हैं. 6.2 Measuring force. Suppose you are pushing against a door and your friend on the other side is also pushing against it. Which way do you think the door will move? In order to answer this question, you must know the size or measure of the forces. The door will move in the direction of greater force. But if the forces are equal, the door will not move at all. देखिए, अगर आप एक डोर को सपोज करें कि आप उसको पुश कर रहे हैं और आपका फ्रेंड भी दूसरी तरफ से उसको पुश कर रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन में डोर मूव करेगा? तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको जो फोर्स का साइज है यानी जो मेजर है वो पता होना चाहिए. तो डोर मूव करेगा जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रहा है, राइट. लेकिन अगर फोर्सेस आपकी इक्वल है तो डोर मूव ही नहीं करेगा. Scientists, of course, cannot rely on description of forces such as greater or smaller. They need to measure the size of a force in numbers and units. The metric unit of force is Newton. Remember that a force affects the motion of an object. So, a Newton measures force in terms of how a push or pull changes the speed of an object of a given mass. तो साइंटिस्ट जो हैं ये जो डिस्क्रिप्शन है फोर्स का कि ग्रेटर और स्मॉलर, इस पर तो वो रिलाई नहीं कर सकते. इसीलिए जो फोर्स का साइज़ है उसे मेजर करना बहुत ज़रूरी है इन नंबर्स एंड यूनिट्स. तो जो मेट्रिक यूनिट ऑफ फोर्स की दैट इज़ न्यूटन, और इसका सिंबल है कैपिटल एन. फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अफेक्ट करता है. तो जो एक न्यूटन फोर्स है, न्यूटन मेजर फोर्स है in terms of how a push or pull changes the speed of an object of a given mass. Okay, a force of 1 Newton changes the speed of a 1 kilogram
pass by 1 meter per second. So the force in Newton is equal to the mass of an object time it change in speed. देखिए एक जो फोर्स है 1 न्यूटन का वो स्पीड चेंज कर रहा है 1 किलोग्राम मास की बाय 1 मीटर पर सेकेंड. सो जो फोर्स है इन न्यूटन्स में वो किसके इक्वल है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट time it changes in speed. Here is an example. Suppose you wish to push a 2 kilogram box so that in 1 second its speed changes from 0 meters per second to 5 meters per second. Remember, force is equal to the mass of the object multiplied by its change in speed. So the number of newtons you would have to supply is 2 into 5 or 10 newtons. If the box had a mass of 10 kilograms, how many newtons of force would you need to exert? You would have to exert a force of 10 into 5 into 5 or 50 newtons. Scientists often use a spring balance to measure force. देखिए एक एग्जाम्पल है, आप एक 2 किलोग्राम बॉक्स में उसको पुश करना चाहते हैं इन 1 सेकेंड. सो स्पीड चेंज हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड, राइट. अब जो देखिए जो फोर्स है वो किसकी इक्वल है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाई इट्स चेंज इन स्पीड. सो नंबर ऑफ न्यूटन्स आप कितना सप्लाई करेंगे? 2 into 5 यानी कि 10 न्यूटन. अगर बॉक्स का मास 10 किलोग्राम है तब क्या हो जाएगा? आपका फोर्स 10 into 5 इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन्स. तो जो साइंटिस्ट हैं फोर्स को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करते हैं. हियर इज अ पिक्चर ऑफ स्प्रिंग बैलेंस. एक्टिविटी 1, मेकिंग योर ओन स्प्रिंग बैलेंस. टेक अ स्प्रिंग अबाउट 10 centimeter long, twist its two ends into hooks. Fix a peg in a wooden frame and suspend the spring from the peg with the hook. Suspend a pan from the lower hook. Paste a paper stripe on the board behind the spring. Fix a needle to the lower hook so as to touch the paper stripe. Mark the position of the needle on the paper stripe as 0. Put a weight of 10 gram on the pan. We see that the needle moves downwards. Mark this position of the needle as 10 gram. Go on adding weights and marking the new positions of the needle. Your spring balance is ready. देखिए आपको स्प्रिंग लेनी है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसके 2 एंड्स को ट्विस्ट कर देना है हुक्स पे. एक पेग जो होगा फिक्स करना है वुडन फ्रेम में एंड स्प्रिंग को सस्पेंड करना है पेग से हुक के साथ. फिर आपने क्या करना है? एक जो पैन है उसको सस्पेंड करना है लोअर हुक से. एक पेपर स्ट्राइप को आप पेस्ट कर देंगे ऑन द बोर्ड जो आपके स्प्रिंग के बिहाइंड होगा. फिर एक नीडल को फिक्स करना है लोअर हुक पे जिससे कि वो टच करे पेपर स्ट्राइप को. फिर पोजीशंस को मार्क करना है जो नीडल की पोजीशन है पेपर स्ट्राइप पे एज 0. फिर 10 ग्राम का आपको वेट रखना है पैन पे. आप देखेंगे जो नीडल है वो डाउनवर्ड्स मूव करेगी. फिर आप इस पोजीशन जो है नीडल की इसको मार्क करेंगे एज 10 ग्राम. ओके, फिर उसके बाद आप ऐड करते जाइए वेट और मार्क करते रहिए न्यू पोजीशन नीडल की. तो आपका जो स्प्रिंग बैलेंस है नाउ इट्स रेडी. 6.3 कंबाइनिंग फोर्स रिजल्टिंग साइज एंड डायरेक्शंस. Suppose you were trying to pull a wagon filled with rocks. Yet to get the wagon to move, you would have to exert a force on the wagon and rocks. If your force was not large enough, you might ask a friend to help you. Your friend might pull you or push from the back of the wagon. In either case, these two forces would be exerted in the same direction. So the two forces would combine or add together. The total force on the wagon would be the sum of the individual forces. If your friend pulled the wagon in the opposite direction, the forces would combine in a different way. Suppose आप एक wagon जो rock से filled है उसको pull कर रहे हैं और मूव कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स एक्सर्ट करना पड़ रहा है वेगन और रॉक्स पे. अगर वो फोर्स इतना बड़ा नहीं है तो आप अपने फ्रेंड को कहेंगे हेल्प करने के लिए. तो आपका जो फ्रेंड है वो आपके साथ पुल करेगा या फिर वेगन को पुश करेगा बैक से, राइट. तो हर केस में क्या होगा कि जो दो फोर्सेस हैं वो एक्सर्ट हो रहे हैं आपके सेम डायरेक्शन में. तो जो दोनों फोर्सेस हैं वो कंबाइन हो जाएंगे या फिर ऐड हो जाएंगे. लेकिन अगर आपका फ्रेंड जो है वेगन को पुल कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में तो जो फोर्सेस हैं वो अलग तरीके से कंबाइन होंगे. इफ वन फोर्स वो ग्रेटर देन द अदर, हाउ डू यू थिंक द वेगन वुड मूव? You are right. If you see in the direction of the greater force and the total force of the wagon would be the difference between the individual forces, in this case your friend would certainly not be helpful. अच्छा, अब क्या होगा कि अगर एक फोर्स दूसरे से ग्रेटर होगा तो वेगन मूव करेगी. तो वेगन आपकी मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स.
तो जो टोटल फोर्स है वेगन पे वो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल फोर्सेस, यानी जो दो ने फोर्स लगाया उनके बीच का डिफरेंस। ओके, और इस केस पे आपका जो फ्रेंड है वो सर्टेनली आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, बिकॉज वो क्या कर रहा है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहा है, राइट। When two or more forces act on a body in such a way that the resultant force is zero, the applied force are called balanced force and the object does not move at all. When two other forces act in a body in such a way that the resultant force is not zero, the applied forces are called unbalanced forces and that will cause to move the object. देखिए, जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं कि जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़ीरो हो जा रहा है, तो जो अप्लाइड फोर्स है वो आपका क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है। और बैलेंस्ड फोर्स है तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। और जब आपके दो फोर्सेस एक बॉडी में एक्ट कर रहे हैं इस तरह से कि जो रिजल्टेंट फोर्स है ना वो ज़ीरो नहीं है, तो जो अप्लाइड फोर्स है वो आपका है अनबैलेंस्ड फोर्स, और इसकी वजह से क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। You should remember that in describing forces, a number value, a unit and a direction must be given. It is helpful to think of forces as arrows. The head of the arrow points in the direction of the force. Using such arrows, you can tell what the resulting size and direction of combined forces will be. देखिए, जब हम फोर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक नंबर वैल्यू, एक यूनिट और डायरेक्शन हमेशा दी होनी चाहिए। और जैसे आप ये जैसे एरोज की हम बात करें तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू थिंक ऑफ फोर्स। जो हेड एरो का ये पॉइंट कर रहा है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, और ऐसे एरोज को यूज़ करके हम बता सकते हैं कि रिजल्टिंग साइज क्या है और जो डायरेक्शन होगा कंबाइंड फोर्स का वो क्या होगा। 6.4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। Forces can act on an object from a distance or in contact with it. Depending on this, forces can be classified as contact and non-contact forces. 6.5 Contact and non-contact forces. Number 1, contact forces. Some forces act on a body when the surface of force is actual contact with the body. Such forces are called contact forces. Some examples of contact forces are: number 1, pulling force exerted by a horse on the cart. Number 2, pushing force exerted by a nurse on a wheelchair. Number 3, the force exerted on a gum tube to extract gum. Number 4, force exerted by a hammer to drive the nail in the wall. In general, the muscular force, mechanical force and friction force are contact forces. कुछ forces आपकी body पे act करते हैं जब source of force है वो actual contact में होता है body के साथ, right? जैसे कि आपका जो pulling force जो हॉर्स एग्जर्ट करता है कार्ट पे, पुशिंग फोर्स जो एक नर्स एग्जर्ट करती है व्हील चेयर पे, फोर्स जो गम ट्यूब पे लगाया जाता है जिससे कि गम निकल सके, और हैमर पे जो फोर्स एग्जर्ट किया जाता है जिससे कि जो नेल है वो वॉल में जा सके। ओके, तो आपकी जो फोर्सेस हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नंबर 2, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. Some forces act on a body when the source of force is not in actual contact with the body but is at a finite distance. Such forces are called non-contact forces. The examples of non-contact forces are: number 1, a ball released from the roof of a building falls due to the force of Earth's gravity. Number 2, a magnet attracts nearby iron nails due to magnetic force. In general, electric force, magnetic force and gravitational forces are non-contact forces. कुछ फोर्सेस आपकी बॉडी पे एक्ट होते हैं जब सोर्स ऑफ फोर्स जो है वो एक्चुअल कांटेक्ट में नहीं होता बॉडी के, बट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, तो आपके नॉन कांटेक्ट फोर्स है। जैसे कि आपकी बिल्डिंग के रूफ से एक बॉल रिलीज होती है ना, वो गिरती है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अर्थ्स ग्रेविटी जो है, एंड जो मैग्नेट है नियर बाय आयरन नेल्स को अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सो आपके जो एग्जाम्पल्स हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। A brief description of some of these forces is as follows. Number 1, muscular force. When we lift a weight by our hand, the force is exerted by the muscles of our arm. The force exerted by the muscles is called muscular arm. Humans and animals usually exert muscular force to do work. देखिए, जब भी कोई चीज़ हम अपने हाथों से लिफ्ट करते हैं तो फोर्स एग्जर्ट कौन कर रहे हैं? हमारे मसल्स, हमारी आर्म की। ओके, तो ये जो फोर्स हमारी मसल्स एग्जर्ट कर रही हैं दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। Number 2, magnetic force.
The force exerted by a magnet is called magnetic force. Iron, cobalt and nickel are magnetic substances. A magnet exerts a force of pull on magnetic substances. If we bring a magnet near small iron objects like pins, the magnet pulls them toward it. Like poles of two magnets repel, push each other, whereas unlike poles of two magnets attract or pull each other. Some toys work due to magnetic force. जो फोर्स मैग्नेट एक्सर्ट करता है वो आपका मैग्नेटिक फोर्स है. जैसे कि आपकी आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये आपके मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है ना. मैग्नेट जो है फोर्स एक्सर्ट करता है, अ फोर्स ऑफ पुल इन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे. जैसे कि अगर आप मैग्नेट को कुछ आयन ऑब्जेक्ट के पास लेके जाएंगे, जैसे कि पेन्स है, तो जो मैग्नेट है वो क्या करेगा, उनको अपनी तरफ पुल करेगा. दो मैग्नेट के जो लाइक पोल्स है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, जबकि अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. Number 3, electrostatic force. The force exerted by an electrostatic charge is called electrostatic force. Activity 2. Take a dry comb or a plastic ballpoint pen. Rub it into your dry hair for about a minute. Bring the rubbed pen near the tiny pieces of paper. The pieces of paper move towards a pen and stick to it. An electrostatic charge is produced in the pen on rubbing it into dry hair. This shows that electrostatic force moves the objects. The force between the pen and the small pieces of paper is known as electrostatic force. तो चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या होता है, वो एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं. आपने एक कॉम लेनी है, ड्राई कॉम, या फिर आप एक बॉल पॉइंट पेन भी ले सकते हैं प्लास्टिक का. आपने क्या करना है, इसको अपने ड्राई हेयर पे आप रब करेंगे 1 मिनट तक. फिर आप क्या करेंगे, ये जो रब पेन है या जो कॉम है उसको लेके जाएंगे आप छोटे छोटे जो पीसेस होंगे पेपर के, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है, राइट. तो जो पीसेस है पेपर के वो पेन की तरफ स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे. अगर आपने कॉम लिए तो वो कॉम की तरफ चले जाएंगे. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है वो पेन में प्रोड्यूस हुआ कब, जब आपने उसको ड्राई हेयर में रब किया. इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है. तो जो फोर्स है बिटवीन पेन एंड स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नंबर 4, ग्रेविटेशन फोर्स. In the universe, each particle of matter attracts every other particle. The force of attraction exerted by bodies possessing mass is called gravitation force. For example, a piece of a stone attracts all other objects including the earth. The piece of stone in turn also experiences the gravitational force of all other objects. It is the gravitational force which keeps the moon revolving around the earth. The planets experience gravitational force of the sun which keeps them in the orbit. There is difference between gravitational force and force of gravity. Gravitational force is universal, but the force of gravity is a force by which earth attracts or pulls a body towards its center. The earth exerts force of gravity on all objects. An apple falls on the earth because of the force of gravity. When a diver dives into a swimming pool, it is the force of gravity which pulls him down. देखिए इस यूनिवर्स में हर पार्टिकल जो है ना मैटर का दूसरे अदर पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है. तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो एक्सर्ट किया जाता है बाय बॉडीज पोजेसिंग मास उसे कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स. जैसे कि पीस ऑफ स्टोन जो है वो अट्रैक्ट करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट को इंक्लूडिंग अर्थ. तो जो पीस ऑफ स्टोन है वो क्या करेगा, वो भी एक्सपीरियंस करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से. तो ये ग्रेविटेशन फोर्स है जिसकी वजह से मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. प्लैनेट्स भी ग्रेविटेशन फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं सन के, जिसकी वजह से अपने ऑर्बिट में रहते हैं. बट ग्रेविटेशन फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बीच में डिफरेंस है. जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो यूनिवर्सल है, बट जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कौन सा फोर्स है जिससे अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट या पुल करती है. ठीक है, जो अर्थ है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्ट करती है सभी ऑब्जेक्ट में. जैसे एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ गिरता है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी. इसी तरह से जो डाइवर है जो स्विमिंग पूल में डाइव कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे पुल करती है. वेट, द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स any given object is called its weight. Different objects have different weights. The greater the pull of the earth on an object, the greater is its weight. The weight of an object is different in different places. The weight of an object is measured with a spring balance. अच्छा देखिए, जिस फोर्स के साथ अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है या पुल करती है, दैट इज कॉल्ड इट्स वेट. अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट का डिफरेंट वेट होता है.
जितना ज़्यादा ग्रेटर अर्थ का पुल होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में, इसका मतलब ग्रेटर उसका वेट होगा। तो वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होता है, ओके और जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस से, राइट। Number 5, frictional force. Objects do not come to rest on their own. What brings an object to rest is an invisible force called friction. Friction is a force that opposes the motion of an object. When objects are in contact with each other, friction acts in a direction opposite to the motion of the moving object. The moving object slows down and finally stops. There are two types of friction, sliding and rolling. When solid objects slide over each other, sliding friction acts between their surfaces. Sliding a book across a table produces this type of friction. Whereas an object such as a ball or a wheel rolls over a surface rather than slides. The friction produced here is called rolling friction. Rolling friction tends to be less than sliding friction. That is why wheels are often placed under objects that are to be moved. देखिए आप ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप से क्या रेस्ट में आते नहीं, तो ये कौन सा फोर्स है जो उनको स्टॉप करता है? एक इनविजिबल फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन आपका वो फोर्स है जो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को अपोज करता है, राइट। जब आपके ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में होते हैं एक दूसरे के साथ तो फ्रिक्शन जो है एक्ट करता है बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन। जो मूविंग ऑब्जेक्ट का मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा, तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो स्लो डाउन हो जाएगा एंड देन फाइनली वो स्टॉप हो जाएगा। दो तरह के फ्रिक्शंस है आपके, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। जब सॉलिड ऑब्जेक्ट स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करता है उनके सरफेस के बीच में। जैसे कि आप बुक को स्लाइड कर रहे हो अक्रॉस अ टेबल, तो इस तरह का जो फ्रिक्शन है वो प्रोड्यूस हो रहा है। जबकि ऑब्जेक्ट जैसे कि बॉल है या व्हील है वो रोल करेगी सरफेस पे रेदर देन स्लाइड, तो जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस होता है। इसीलिए व्हील्स आपने देखा होगा, व्हील्स दिए रहते हैं उन ऑब्जेक्ट के नीचे जिनको मूव कराना होता है। 6.6 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। Force produces the following effects. Number 1, change in the state of rest or motion. A force can make a body move and stop a moving body. A football moves on applying a force on it by a kick. We can stop it by applying a force in the opposite direction. Number 2, change in speed. A force can increase or decrease the speed of a moving object. If a boy pushes a moving cyclist in its direction, its speed increases. But if the boy pulls the cycle back, the speed of the cyclist will decrease. देखिए फोर्स के क्या इफेक्ट है। सबसे पहले तो ये स्टेट है जो रेस्ट और मोशन का, उसे चेंज करता है। फोर्स किसी भी बॉडी को मूव करा सकता है या उसको स्टॉप कर सकता है, ओके। इसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है। फोर्स की वजह से किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को आप इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे देखिए इस पिक्चर में बॉय जो है वो मूव कर रहा है, पुश कर रहा है एक जो मूविंग साइकिलिस्ट है, तो इससे उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। बट सेकंड केस में क्या कर रहा है, वो पुल कर रहा है साइकिल को बैक, तो स्पीड इसमें क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट। नंबर 3, चेंज इन डायरेक्शन. Force can change the direction of a moving object. A football player kicks a moving football to change its direction. During the game of cricket, when the moving ball is hit by a bat, it changes its direction. Number 4, change in shape. A force can change the shape of an object. When force is applied to a non-rigid body, such as a toothpaste tube, tomato, clay wax, etc., it causes a change either in the shape or size of that body. आपका फोर्स या डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे फुटबॉल प्लेयर क्या करता है, मूविंग फुटबॉल को किक करता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्रिकेट में भी ऐसा होता है, मूविंग बॉल को जब बैट से हिट किया जाएगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना। शेप में चेंजेस आते हैं फोर्स अप्लाई करने से। जैसे कि टूथपेस्ट ट्यूब है ना, आप उसको क्या करेंगे, उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, उसका शेप चेंज हो जाएगा। टमेटो है, क्ले वैक्स है, उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो ऐसे केस में या तो शेप चेंज होगा या उस बॉडी का साइज चेंज होगा, राइट। In other words, the force causes deformation. और दूसरे शब्दों में कहें तो फोर्स की वजह से क्या होता है, डिफॉर्मेशन। जैसे पिक्चर में देखिए आप, टमेटो को आपने इस तरह से उसको स्क्वीज़ कर दिया तो देखिए उसकी शेप कैसे हो गई है ना। इसी तरह से टूथपेस्ट को जब आप स्क्वीज़ करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींचेंगे तो क्या होगा,
शेप चेंज हो जाएगी। इसी तरह से जो आयरन टाइप की शेप है वो चेंज हो जाती है जब उसको हैमर किया जाता है। 6.7 फ्रिक्शन। A ball rolling on the ground reduces in speed and stops after some time. When we stop pedaling a bicycle, it slows down and finally stops. Any object moving over the surface of another object slows down and finally stops, though no visible external force is applied on it. What makes a moving object stop or prevent stationary objects from moving? This is the frictional force which opposes motion. We have learned in the previous chapter that the friction results from two surfaces rubbing against each other or moving relative to one another. This is the force of friction resists the motion of an object or retards the motion. The frictional force always acts in a direction opposite to that of the motion of the body. देखिए फ्रिक्शन फोर्स के बारे में अभी अपने पढ़ा कि ये जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन है उसे ऑपोज करता है और हमेशा ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करता है ना। जैसे आपने देखा कि बॉल जो है ग्राउंड पर रोल कर रही है, उसकी स्पीड रिड्यूस होती है, कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है। इसी तरह से आप बाइसिकल को पैडल करना स्टॉप कर दीजिए, पहले वो स्लो डाउन होगी, फाइनली स्टॉप हो जाएगा। बट इसमें कोई भी विजिबल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, राइट। एक इनविजिबल फोर्स है विच इज फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके एक्ट करता है ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। 6.8 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। Scientists talk about 4 kinds of friction. When you begin to push a box along the floor, there is static or starting friction. As you keep it moving, there is kinetic or sliding friction. If you mount a box on wheels and push it, it is rolling friction. If you put oil or other liquid between the box and the floor, it is fluid friction. Let us study these 4 kinds of frictions briefly. तो देखिए आपके जो 4 तरह के फ्रिक्शन फोर्स हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 है स्टैटिक और स्टार्टिंग फ्रिक्शन। कंसिडर अ बुक प्लेस्ड ओवर अ हॉरिजॉन्टल टेबल. Apply a small force F on it as shown in the figure. The book does not move. The force of friction comes into action and balance the applied force F. The force of friction which comes into play between the surfaces of two bodies before the body actually begins moving is called static friction. देखिए आपने कंसिडर किया कि बुक जो है हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर प्लेस्ड है, आपने उसमें छोटा सा एक फोर्स अप्लाई किया F, बुक मूव नहीं करेगी। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है Fs वो एक्शन में आएगा और जो अप्लाइड फोर्स, आपने जो फोर्स अप्लाई किया ना F, उसको बैलेंस करेगा। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो आपका विच कम्स इनटू प्ले दो बॉडीज के सरफेस के बीच में, तो जो बॉडी है वो एक्चुअली स्टार्ट करेगी मूव करना, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसको Fs यानी कि static friction. As the force applied on the book is increased, the static friction also increases and is equal to the applied force up to a certain limit. Once the applied force is increased beyond a certain limit, the book just begins to move at the stage static friction is maximum. The maximum force of static friction which comes into play when a body just starts moving over the surface of another body is called limiting friction. तो जैसे देखिए आपने फोर्स जो अप्लाई किया बुक के ऊपर वो इंक्रीज हुआ, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी इंक्रीज हुआ, राइट, एंड वो आपकी इक्वल है टू द अप्लाइड फोर्स जो कि सर्टेन लिमिट तक आपने अप्लाई किया। तो जो एक बार अप्लाइड फोर्स जो इंक्रीज हो जाता है बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट, तो जो बुक है वो इट स्टार्ट्स टू मूव, और इस स्टेज पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम होता है। तो जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है विच इज़ डिनोटेड बाय FMS, ये इट कम्स इनटू प्ले, ठीक है। और जब एक बॉडी जो है जस्ट मूव करना स्टार्ट करती है ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन. When a solid object slides over each other, slide friction acts between their surfaces. Sliding a book across a table produces this type of friction. Thus, sliding friction is a frictional force offered when an object is sliding on the other. Once the motion has begun, the force of friction decreases. A smaller force is now necessary to maintain uniform motion. The amount of sliding friction depends upon 2 factors: the weight of the object that is moving and the types of surfaces that are in contact. It is harder to slide a
200 Newton cement block than a 100 Newton cement block over sandpaper. It is also harder to slide a 200 Newton block over sandpaper than over grass. Remember, the sliding friction is less than static friction. देखिए जो अमाउंट है ना स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स में. सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट का वेट क्या है जो मूव कर रहा है, और टाइप ऑफ सर्फेसेस जो कांटेक्ट में है. अब आप जैसे देखेंगे 200 न्यूटन सीमेंट ब्लॉक को स्लाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपैरेटिवली 100 न्यूटन सीमेंट ब्लॉक. किसी भी अगर सैंड पेपर के आप ऊपर से स्लाइड कर रहे हैं, तो इसके अलावा 200 न्यूटन ब्लॉक को स्लाइड करना मुश्किल है ओवर सैंड पेपर देन ओवर ग्रास. तो अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो आपका लेस देन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट. रोलिंग फ्रिक्शन. Rolling friction is a frictional force offered when a body rolls on a surface. An object such as ball or a wheel rolls over a surface rather than slides. The friction produced here is called the rolling friction. Rolling friction tends to be less than sliding friction. जैसे देखिए आपकी बॉल है या व्हील है, वो रोल करते हैं किसी सरफेस में, है ना, ये स्लाइड नहीं करते, तो दिस फ्रिक्शन फोर्स इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन आपका क्या होता है? इट इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. Next one is fluid friction. Water, oil and air are examples of fluids. All liquids and gases are fluids. When a body moves in a fluid, the particles of the fluid move past it and exert frictional force. This friction force is the force of friction exerted by fluids on objects moving through them. The frictional force exerted by liquids is also called drag. Air resistance is an example of fluid friction. Air resistance makes a falling object fall more slowly. For example, a piece of paper dropped from a height comes to the ground slowly due to air friction. Fluid friction is usually less than sliding friction. Substances called lubricants, which are slippery substances such as grease, changes sliding friction to fluid friction. This reduces the friction. देखिए आपके वाटर, ऑयल एंड एयर ये आपके फ्लूइड्स हैं, ठीक है. जितने भी लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, सारे आपके फ्लूइड्स होते हैं. तो जब बॉडी मूव करती है फ्लूइड में, तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना फ्लूइड के, वो आपके मूव करते हैं और फिर फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं. तो फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लिक्विड्स एक्सर्ट करते हैं उसे ड्रैग भी कहा जाता है. एयर रेजिस्टेंस ये भी एक एग्जाम्पल है फ्लूइड फ्रिक्शन का. एयर रेजिस्टेंस क्या करती है कि जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसको और स्लो कर देती है. मतलब फॉल हो रहा है बट वो स्लोली फॉल होगा. जैसे कि पीस ऑफ पेपर अगर आप एक हाइट से ड्रॉप करेंगे तो वो स्लोली ग्राउंड पे आएगा बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन. एंड फ्लूइड फ्रिक्शन जो है आपका यूजुअली स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है. अच्छा, कुछ सब्सटेंस होते हैं जिन्हें कहते हैं ल्यूब्रिकेंट्स. ये स्लिपरी सब्सटेंस होते हैं जैसे कि ग्रीस. ये क्या करते हैं? ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन को चेंज करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन. इससे क्या होता है? फ्रिक्शन आपका रिड्यूस हो जाता है. 6.9 Advantages of friction. Friction is essential for everyday life. For example, writing and drawing is made possible because of the friction between the pen or pencil and the paper. Number 2, the burning of matchstick is possible only because of friction between the rough surface of a matchbox and the matchstick. Number 3, we are able to walk because friction prevents us from slipping. Number 4, without friction, the wheels of a car would not grip the road. They would just spin round and round or would skid on icy roads because the smooth surface reduces friction. The brakes of the vehicles would not work without friction between the rim and the brake shoe. देखिए फ्रिक्शन किस तरह से हमारे लिए एडवांटेजेस है. सबसे पहले जब राइटिंग या ड्राइंग करते हैं तो इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. जो पेन पेंसिल और पेपर के बीच होता है, जो बर्निंग होती है मैचस्टिक की, वो पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन जो रफ सरफेस और मैचस्टिक के बीच में होता है. हम वॉक कर पाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन हमें स्लिप होने से प्रिवेंट करता है. अगर फ्रिक्शन नहीं होता, जो व्हील्स होते हैं ना कार के, वो कभी भी रोड पे ग्रिप पकड़ ही नहीं पाते. वो स्पिन करते ही रहते और स्किड हो जाते हैं आईसी रोड्स पे, क्योंकि जो स्मूथ सरफेस है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. ब्रेक्स जो है व्हीकल्स के, वो काम ही नहीं करते बिना फ्रिक्शन के, जो रिम और ब्रेक शू के बीच में होता है. 6.10 Disadvantages of friction.
अब देखिए एडवांटेजेस तो है फ्रिक्शन के, बट साथ ही साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है चलिए देखते। द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन आर एज फॉलोज। नंबर 1, मशीन पार्ट्स which rub with each other wear out. Number 2, energy is wasted in overcoming friction in the machines. Number 3, due to friction between the sole of the shoe and the floor, the sole wears out. Number 4, the tire of vehicles wear out because of the friction between the tires and the road. देखिए मशीन पार्ट्स जो एक दूसरे के साथ रब करते हैं वो वियर आउट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। एनर्जी वेस्ट होती है इस फ्रिक्शन से ओवरकम करने के लिए मशीन्स में। फ्रिक्शन की वजह से जो सोल ऑफ शू और उसके फ्लोर के बीच का जो फ्रिक्शन होता है इसकी वजह से जो सोल है वो वियर आउट हो जाता है। आपके जो टायर्स होते हैं व्हीकल्स के वो वियर आउट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। Friction can be reduced in the following ways. Number 1, by using lubricants such as oil, grease or graphite. Number 2, by making the surfaces smooth and by polishing them. Number 3, by using wheels and ball bearings. Use of ball bearings and roller bearings change the sliding friction into rolling friction. Friction due to air and water is reduced by adopting streamlined shapes such as shapes of aeroplanes and boats which are narrow in front. अब फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के क्या तरीके हैं? सबसे पहले ल्यूब्रिकेंट का यूज़ किया जाए, जैसे कि आपके ये सारे एग्जांपल्स हैं ल्यूब्रिकेंट्स के। सर्फेसेस को स्मूथ कर दिया जाए, वो कैसा होगा? उनको पॉलिश करके। व्हील्स और बॉल बियरिंग्स का यूज़ करके भी फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। और जो फ्रिक्शन एयर एंड वाटर की वजह से होता है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं अगर स्ट्रीमलाइन शेप को अडॉप्ट कर लिया जाए। जैसे कि एरोप्लेन्स और बोट्स की शेप होती है, ये स्ट्रीमलाइन शेप होती है, ये आपके नैरो होते हैं फ्रंट में, राइट। 6.11 pressure. You must have also observed that a sharp knife cuts a vegetable quickly while you struggle with a blunt knife. Have you wondered why is it easier to force sharp things easily? The sharp knife has a very small area of contact with the surface while the blunt knife has a larger area of contact. If both knives are pushed down with the same force, the sharp knife will exert a greater pressure on the surface as compared to the blunt knife. Similarly, the drawing pin being sharp has a very small area of contact. The pressure is consequently large and hence can be easily forced in. Pressure depends on the amount of force and the area over which the force is applied. The more the force, the more the pressure. However, the bigger the area, lesser is the pressure. Pressure is directly proportional to the force and inversely proportional to the area of contact. Pressure is thus defined as force acting per unit area. So, pressure is equals to force upon area. अच्छा देखिए, जब आप शार्प नाइफ से वेजिटेबल को काटते हैं, चॉप करते हैं तो क्विकली हो जाता है। ठीक है, अगर ब्लंट नाइफ है तो आपको बड़ा टाइम लगता है, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शार्प नाइफ होता है उसका स्मॉल एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है सरफेस के साथ, जबकि जो ब्लंट नाइफ है उसका लार्जर एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा। तो जब आप दोनों ही नाइफ्स पे आप सेम फोर्स लगाएंगे तो जो शार्प नाइफ है वो ग्रेटर प्रेशर एक्सर्ट करेगा एज कम्पेयर टू द ब्लंट नाइफ। ड्रॉइंग पिन क्योंकि बहुत शार्प होती है, उनका स्मॉल एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है, तो प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा लगता है और इसीलिए वो ईजिली उनको हम फोर्स इन कर सकते हैं। तो प्रेशर डिपेंड करता है किस पे? अमाउंट ऑफ फोर्स में एंड एरिया पे, जिस एरिया पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। जितना ज़्यादा आपका फोर्स होगा, द मोर द फोर्स द मोर द प्रेशर। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। ओके, बट ये ध्यान रखिएगा, जितना एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा। तो प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, राइट यानी कि फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट के, यानी एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। सो प्रेशर का फॉर्मूला है आपका दिस, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। Activity 3. Take two board pins, one with sharp end and the other with blunt end. Push the head of each pin into a wooden block with the same force. What difference do you see in both the cases? Which pin pierces the wood more easily? The pin with sharp end will pierce the wood more easily because the force applied on it is acting on a smaller area of the sharp tip of the pin, and here the pressure is more than on the blunt end. देखिए आपको दो बोर्ड पिन्स लेनी है, एक का एंड शार्प होना चाहिए, एक का ब्लंट होना चाहिए। दोनों को आप पुश करेंगे हेड से वुडन ब्लॉक पे सेम फोर्स के साथ, तो क्या डिफरेंस होगा?
कौन सी पिन जो है वो वुड को बहुत ही इजीली पियर्स कर देगी? ऑफ कोर्स जिसका शार्प एंड होगा, है ना, जबकि दोनों में फोर्स जो है वो क्या है आपका सेम अप्लाई हुआ है, बट क्योंकि जो ब्लंट वन है उसका आपका एरिया ज़्यादा होगा तो उस पर आपका प्रेशर कम लगेगा. ओके, यूनिट ऑफ प्रेशर इन SI system, the unit of force is Newton and unit of area is meter square. Therefore, the unit of pressure is Newton per meter square. This unit is called Pascal. Thus, the unit of pressure in SI system is Pascal. Pressure की जो unit है वो Pascal होगी and 1 Pascal is equals to 1 Newton per meter square. Right? यानी कि Pascal आपका होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल 1. What is the pressure exerted by a truck weighing 5 lakh Newton if the area of contact with the ground is 0.4 मीटर स्क्वायर? देखिए आपको क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है. आपके पास फोर्स है, आपके पास एरिया है, तो आप सिंपली क्या करेंगे? प्रेशर का फॉर्मूला लिखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया. फिर आप दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे, राइट, एंड व्हाट इज एरिया? 0.4 मीटर स्क्वायर. उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा विच इज दिस, इतना पास्कल. राइट. एग्जाम्पल 2 की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. इसमें देखिए क्या है, आपको एलिफेंट है जिसका वेट दिया गया है. ओके, एंड प्रेशर आपने निकालना है जो वो ग्राउंड पे एग्जर्ट करेगा. इफ जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, एरिया ऑफ ईच फुट जो अप्रॉक्सीमेटली 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो आंसर्स आपको देने हैं SI यूनिट्स में, यानी जो आप प्रेशर निकालेंगे वो पास्कल में आना चाहिए. राइट. देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर्स में है तो सबसे पहले आप इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. राइट. 6.12 प्रेशर इन फ्लूइड्स. Fluids are substances that flow. As you dive under the water, you can feel the force of the water, especially against your ears. This force is pressure. All liquids and gases possess this force. Together, liquid and gases are called fluids. Fluid pressure is exerted in all directions, down, up, and to the sides. Fluids आपके वो substance होते हैं जो flow करते हैं. आपके liquid and gases ये सारे ही fluid होते हैं. तो जैसे वाटर में डाइव करते हैं ना, आपको फोर्स ऑफ वाटर फील होगा, एंड स्पेशली आप अगेंस्ट योर ईयर्स. तो जो फोर्स है ये आपका प्रेशर है. जितने भी आपके जो फ्लूइड प्रेशर जो है वो सारे डायरेक्शन में एक्सर्ट करते हैं, ऊपर, नीचे एंड साइड्स में. राइट. देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड. These are as follows. Let us verify these characteristics of liquid pressure by carrying out the activity 4. तो देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक लिक्विड जब प्रेशर एक्सर्ट करता है तो वो एक्टिविटी 4 से हमें पता चल जाएगी. तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं क्या है. नंबर 1, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. एट अ सर्टेन डेप्थ अ लिक्विड एक्सर्ट्स द सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ. सबसे पहले लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सभी डायरेक्शन में, और एक सर्टेन डेप्थ पे जो है लिक्विड है सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा हर डायरेक्शन में. एंड जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है तो जो प्रेशर लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है ना वो भी इंक्रीज हो रहा है. तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 4 से. टू शो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ. मेथड: टेक 2 cylindrical tin cans, empty Coca-Cola can and a bucket filled with water. In one can, make a small hole at the bottom and a few holes all around it, but at the same height. Make 2 holes in the other can, one above the other. Put an adhesive tape over the holes around the first can. Close the hole of this can at its bottom with your finger and fill it with water. Now remove your finger. You will find water flowing from the bottom hole speedily. This shows that liquid exerts pressure downward. आपको 2 cylindrical tin cans लेने हैं, जैसे कोका कोला का कैन भी आप लिख सकते हैं, और एक बकेट लेनी है विच इज फिल्ड विद वाटर. एक कैन में आप क्या करेंगे, छोटा सा होल बनाएंगे बॉटम पे और बाकी होल्स आप बनाएंगे सेम हाइट पे. ओके. अब 2 होल्स आपने बनाने हैं दूसरे कैन में, वन अबव द अदर, मतलब एक दूसरे से ऊपर होना चाहिए. अब आपने एक एडेसिव टेप लगाना है वो जो होल्स है फर्स्ट कैन के ऊपर. फिर आपने क्या करना है, होल्स को क्लोज करना है इस कैन के, और इसके बॉटम में जो है अपने फिंगर से करना है. फिर इसको वाटर से फिल करना है. अपनी फिंगर को आप हटाएंगे तो आप देखेंगे वाटर जो है बॉटम में स्पीडली आ रहा है. राइट. इसका मतलब जो लिक्विड है वो एक्सर्ट्स करते हैं प्रेशर डाउनवर्ड्स.
Number 2, after the first can becomes empty, push it into the bucket of water, bottom down. You will find water rushing into the can from the bucket through the bottom hole. This shows that liquid exerts pressure in the upward direction. अब आपने क्या करना है कि आपका फर्स्ट कैन खाली हो गया, अब आपने इसको पुश करना है बकेट ऑफ वाटर में, राइट। आप देखेंगे जो वाटर है ना वो कैन में आएगा जो बॉटम में होल था। इसका मतलब लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। नंबर 3, now put an adhesive tape on the bottom hole of the first can and fill it water. Rip off the adhesive from the holes all around it. You will find water coming out of all the sides hole. This show that liquid exerts pressure in all directions on the sides. You will also find that water from all the holes is flowing at the same speed. It shows that pressure at the same depth is equal to all sides. अच्छा देखिए, अब आपको एडेसिव टेप लगाना है फर्स्ट कैन के बॉटम होल पे, राइट। इसको पानी से भरना है। अब जो हमने होल्स किए थे सेम हाइट पे, उस वहाँ पे एडेसिव टेप लगाया था, उसे हटा देना। अब आप देखेंगे कि साइड होल से वाटर आ रहा है सेम स्पीड के साथ। इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर है सेम डेप्थ पे वो इक्वल होता है सभी साइड्स में, राइट। नंबर 4, पुट एन एडेसिव टेप ऑन बोथ द होल्स ऑफ द अदर कैन एंड फिल इट विद वाटर. Rip off the tape, you will find that water is flowing from the lower hole with greater force than from the upper hole. This shows that liquid pressure increases with depth. अब आपके पास जो दूसरी कैन थी जिसमें आपने 2 होल्स किए थे, एक ऊपर एक नीचे, है ना, आप क्या करेंगे, उसको पानी से भरेंगे, फिर आपने टेप को निकालना है जो आपने उन होल्स को बंद किए थे। अब आप देखेंगे जो वाटर जो लोअर होल से है ना, दोनों होल से आएगा, बट जो लोअर होल है उसमें ज़्यादा प्रेशर के साथ आएगा। मतलब कि लिक्विड प्रेशर जो है वो डेप्थ के साथ आपका इंक्रीज हो जाता है, राइट। आफ्टर कैरिंग आउट द अबव एक्टिविटी, you can well appreciate why submarines are built of hard, thick sheets of metals, why dams are broader at the base than at the top, why foundations of buildings are made wide, and why tires of heavy load trucks are made wide. देखिए, अब इस एक्टिविटी से आपको पता चल जाएगा कि जो सबमरीन्स हैं क्यों उनको बिल्ड किया जाता है हार्ड थिक शीट ऑफ मेटल से। डैम्स इसीलिए आपके जो बेस पे ब्रॉडर होते हैं कंपैरेटिवली टॉप, फाउंडेशन जो बिल्डिंग्स की होती है वाइड होती है, और इसीलिए जो टायर्स होते हैं ना हैवी लोड ट्रक्स के वो वाइड बनाए जाते हैं, राइट। मैनोमीटर. An instrument called manometer is used for measuring the pressure of fluids. It consists of a U-tube filled with a liquid, the level of liquid being determined by the fluid pressure and the height of the liquid being indicated on a scale. देखिए, जो प्रेशर है फ्लूइड्स का उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है विच इज़ कॉल्ड मोनोमीटर. Buoyancy. Fluids have mass and exert pressure. They exert pressure due to distribution of their own weight. Fluid pressure is exerted in all directions, down, up and to sides. In fact, the fluid pressure pushes objects up. The force that pushes an object up is called buoyancy. The upward buoyant force of a fluid opposes the downward force of gravity on an object. In other words, buoyancy acts against the weight of an object. What do you think happens when the buoyant force is equal to or greater than the weight of an object? You are right. If you say that the object floats. When an object is placed in water, it displaces or moves aside a certain amount of water. The amount of water that is displaced has a definite weight, and the buoyant force is equal to the weight of the displaced water. देखिए, फ्लूइड्स का मास होता है, वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर ओन वेट. फ्लूइड हर डायरेक्शन में आपका फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ऊपर, नीचे एंड साइड्स. जो फ्लूइड प्रेशर होता है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को पुश करता है अप. ओके, तो ये जो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को ऊपर पुश करता है दैट इज कॉल्ड बायोंसी. तो जो अपवर्ड बायोंट फोर्स है फ्लूइड का वो क्या करता है, जो डाउनवर्ड फोर्स है ग्रेविटी का उसको ऑपोज करता है ना. और अगर दूसरे वर्ड्स में कहें तो जो बायोंसी है वो अगेंस्ट एक्ट करती है, अगेंस्ट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. देखिए, क्या होगा अगर बायोंट फोर्स है वो आपके इक्वल या ग्रेटर हो जाएगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उस टाइम पे क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, राइट. जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम वाटर में प्लेस करते हैं, ये डिस्प्लेस करता है सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, तो जो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया है
हुआ है उसका डेफिनेट वेट होता है, एंड जो बाइंड फोर्स है वो आपका इक्वल होगा ये जो वेट है ना जो डिस्प्लेस वाटर का उसके इक्वल। 6.13 atmospheric pressure. We know that the earth is surrounded by air. This envelope of air around the earth is called atmosphere. The atmospheric air extends up to several kilometers above the surface of the earth. The air in atmosphere has mass and so it can exert force. The pressure exerted by the atmosphere is called atmospheric pressure. Scientists use a special instrument to measure air pressure. This instrument, a barometer, was invented in 1643 by an Italian scientist named Evangelista Torricelli. देखिए अर्थ जो है एयर से सराउंडेड है, ये जो एनवलप ऑफ एयर है विच इज सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो आपके सेवरल किलोमीटर्स तक एक्सटेंडेड है अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सो जो एयर है आपके एटमॉस्फेयर में उसका मास है तो ये फोर्स एक्सर्ट करती है, तो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है एटमॉस्फेयर दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो साइंटिस्ट एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए विच इज़ नोन एज बैरोमीटर, ओके, जो कि एक इटालियन साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। प्रेशर बाय एयर इज एक्सर्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। Like the pressure at any depth inside a liquid, pressure by air is exerted equally in all directions. For example, we do not see an empty oil can being deformed by the enormous pressure of the atmosphere. This is so because the air inside tends to push the can outside while the air outside pushes it in. These pressures are equal and opposite, so they balance each other, leaving the can unaffected. देखिए आपका जो एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है वो भी हर डायरेक्शन में करती है इक्वली। अब जैसे एम्प्टी ऑयल कैन है, आप उसको वो डिफॉर्म्ड नहीं नज़र आएगा, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उस पर लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एयर इनसाइड है वो पुश करती है कैन को आउटसाइड, जबकि एयर जो आउटसाइड है वो कैन को पुश करती है इन। तो ये प्रेशर इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसीलिए कैन अनअफेक्टेड रहता है। एक्टिविटी 5, टेक अ थिन एम्प्टी कैन ऑफ टिन, फिल इट पार्टली विद वाटर with no lid on. Boil the water in the can for a few minutes so that the steam drives all the air out of the can. Put the lid on the can tightly. Now cool the can under tap water. What do you observe? Observation, you will observe that can collapse inwards in all direction. देखिए आपको क्या करना है, एक thin empty can लेना है, उसको वाटर से भरना है पार्टली, एंड उसमें लिड नहीं होना चाहिए। अब आप वाटर को बॉईल करेंगे कैन में फ्यू मिनट्स तक, जिससे कि जो स्टीम है इट ड्राइव्स ऑल द एयर आउट ऑफ द कैन, ओके। अब आपने क्या करना है, लिड उस पर लगाना है टाइटली, फिर कूल को आपने कैन को आपने कूल करना है टैप वाटर के नीचे। तो आप क्या देखेंगे कि वो इस तरह से, देखिए कैन किस तरह से कोलैप्स हो गया है इनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। क्यों हुआ है इसका रीजन जानते हैं। रीजन, this is due to large atmospheric pressure acting on the can from outside. When water is boiling, air is displaced by steam. When we cool the can under water, the steam inside the can condenses, producing water and a partial vacuum inside the can. As a result, pressure inside the can decreases while outside atmospheric pressure being larger crushes the can from all directions. तो देखिए ऐसा क्यों हुआ, लार्जर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो कि कैन के बाहर से ऐड कर रहा था। देखिए जब वाटर बॉईल हुआ तो एयर उसमें से डिस्प्लेस हो गई क्योंकि स्टीम बन गया, राइट। तो जब हमने कैन को अंडर वाटर कूल किया तो जो स्टीम थी ना अंदर की वो कंडेंस होके फिर उसने क्या किया, वाटर प्रोड्यूस हो गया, और जो पार्शियल वैक्यूम था कैन के अंदर आपका प्रोड्यूस हो गया, ओके। अब इससे क्या होगा कि जो प्रेशर था इनसाइड द कैन वो डिक्रीज हो गया, जबकि बाहर का प्रेशर ज़्यादा था, और क्योंकि बाहर प्रेशर ज़्यादा था तो उसने कैन को क्रश कर दिया फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। The existence of atmospheric pressure is proved from the activity 5. It is also proved that atmospheric pressure is immense. How atmospheric pressure helps? When we drink lemonade from a glass with a straw, we suck the air in the drinking straw. The air pressure in the straw decreases and the atmospheric pressure acting on the surface of the lemonade then forces the lemonade to move up inside the straw and into our mouth. It is the same principle by which a liquid is sucked into a syringe.
अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे हेल्प करता है, जैसे कि हम लेमनेड पी रहे हैं ग्लास से स्ट्रॉ की हेल्प से, हम एयर को सक करते हैं ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में, फिर जो एयर प्रेशर होता है स्ट्रॉ में वो डिक्रीज हो जाता है, एंड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लेमनेड के सर्फेस पे एक्ट करेंगे एंड वो फोर्स करेंगे लेमनेड को कि वो स्ट्रॉ पे मूव करे, है ना, और फिर वो हमारे माउथ तक आएगा. मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. The liquid pressure meter was made by tying a membrane on the wide mouth of a funnel. This device is not sensitive enough to measure atmospheric pressure. As already mentioned, the device to measure atmospheric pressure is called barometer. There are two types of barometers. Number one, mercury barometer, and two, aneroid barometer. देखिए आपको पता है कि जिस डिवाइस से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं दैट इज बैरोमीटर, एंड ये भी आपके टू टाइप्स के, मर्क्यूरी एंड एनेरॉइड बैरोमीटर. Mercury barometer. A 100 centimeter long, narrow, stout glass tube closed at one end is taken. It is filled with mercury to the brim. It is sealed with finger. This tube is inverted while the finger is still in place, with the sealed end of the tube into a trough containing mercury. The tube is held in vertical position and the finger is removed. Some mercury flows out of the tube into the trough, leaving vacuum, empty space at the top of the tube. An appreciable amount of mercury remains standing in it. The pressure of this column of mercury in the inverted tube is balanced by the atmospheric pressure. The height of the mercury in the tube is measured. At sea level, the level of mercury in the tube is found to stand at a height of 76 centimeter above the level of mercury in the trough. At a height of about 1000 meter above the sea level, the atmospheric pressure is equal to about 73 centimeter of mercury. For convenience, the pressure is expressed as the height of mercury in the barometer. The pressure, which can balance 76 centimeter height column of mercury, is said to be equal to 1 atmosphere or 1 bar. It is called standard pressure. देखिए एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग नैरो स्टाउट ग्लास ट्यूब लेना है जो क्लोज होगी एक एंड पे, ओके. इसको फिल करना है मर्क्यूरी से ब्रिम तक, फिर इसको फिंगर से सील करना है, फिर इस ट्यूब को इन्वर्ट कर देना है, यानी अपसाइड डाउन करना है, ओके. फिर ट्यूब को हेल्ड करना है वर्टिकल पोजीशन में एंड फिंगर को रिमूव करना है. कुछ मर्क्यूरी जो है वो ट्यूब से ट्रफ में चला जाएगा, ओके, क्योंकि आपने इसको ट्रफ में रखा है. फिर आप क्या होगा कि जो उसमें एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा ट्यूब के टॉप पे, और कुछ अमाउंट जो है मर्क्यूरी का वो वहीं पे रहेगा. तो जो प्रेशर है ना इस कॉलम ऑफ मर्क्यूरी का इस इन्वर्टेड ट्यूब में, वो बैलेंस हो जाएगा किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. तो जो हाइट है मर्क्यूरी की में उसकी मेजर किए जाएंगे. तो सी लेवल पे जो लेवल होता है मर्क्यूरी का ट्यूब का वो पाया जाता है एट द हाइट ऑफ 76 सेंटीमीटर अबव द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द ट्रफ. तो 1000 मीटर की हाइट पे अबव द सी लेवल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वल होता है 73 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. तो कन्वीनियंस के लिए क्या किया जाता है, जो प्रेशर एक्सप्रेस किया जाता है ना एज अ हाइट ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर में, राइट. तो जो प्रेशर जो बैलेंस करता है 76 सेंटीमीटर हाई कॉलम ऑफ मर्क्यूरी को, उसको कहा जाता है इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार, और इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड प्रेशर, ओके. A similar experiment was performed by Blaise Pascal. He filled water in the tube instead of mercury. Water is 13.6 times lighter than mercury. Similar experiment किया था ब्लेजी पास्कल ने. उन्होंने वाटर को फिल किया था ट्यूब में इंस्टेड ऑफ मर्क्यूरी, एंड वाटर आपको पता है इतने टाइम्स लाइटर होता है मर्क्यूरी से. Therefore, the atmospheric pressure can support a column of water 76 into 13.6 centimeter or nearly 10 meter in height. Hence, he had to take a tube longer than 10 meter. It was convenient, so mercury is used to be filled in the barometer. तो देखिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सपोर्ट करता है कॉलम ऑफ वाटर को इतना, या नियरली 10 मीटर इन हाइट. तो इसीलिए उनको एक लंबी ट्यूब लेनी पड़ी 10 मीटर से ऊपर, ठीक है. तो इसीलिए कन्वीनियंट था कि मर्क्यूरी को बैरोमीटर में यूज़ किया जाए. एनेरॉइड बैरोमीटर. The mercury barometer, being heavy and breakable, is not portable in a ship or an aeroplane. Nowadays, portable aneroid barometers are used.
Aneroid barometer is just the size of a small clock and reads the atmospheric pressure in any position because no liquid is used in it. The aneroid barometer consists of a metal box. Partial vacuum is created in it. Its lid is flexible and joined with a spring and a system of levers. Change in pressure produces a change in the shape of the lid, which is transmitted to a pointer which moves over a graduated dial. The pressure changes are also calibrated in terms of weather conditions, stormy, rain, normal, fair and very dry. अब क्योंकि देखिए मर्क्यूरी बैरोमीटर काफ़ी हैवी थे, ब्रेकेबल भी थे, तो पोर्टेबल नहीं थे, तो आजकल जो पोर्टेबल एनरॉइड बैरोमीटर्स हैं विदाउट लिक्विड, इनको यूज़ किया जाता है. तो ये एक साइज़, इसका साइज़ होता है एक स्मॉल क्लॉक के जितना, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीड करता है किसी भी पोजीशन में, एंड इसमें कोई भी लिक्विड यूज़ नहीं किया जाता. ओके, तो जो एनरॉइड बैरोमीटर थे उसमें एक मेटल बॉक्स होता है, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट किया जाता है इसमें, फिर इसकी जो लिड होती है फ्लेक्सिबल होती है और जॉइंट होती है स्प्रिंग के साथ एंड ए सिस्टम ऑफ लेवर के साथ. फिर जो चेंज होता है आपका प्रेशर में, वो एक चेंज प्रोड्यूस करता है लिड के शेप में, फिर जो कि ट्रांसमिट किया जाता है टू अ पॉइंटर जो कि आपके ग्रेजुएटेड डायल में मूव करता है. फिर जो प्रेशर चेंज होता है इस पे आपके जो वेदर कंडीशंस है ना उस पर भी कैलिब्रेटेड रहते हैं, जैसे कि स्टॉर्मी, रेन, नॉर्मल, फेयर एंड वेरी ड्राई. वेरिएशंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. The atmospheric pressure is due to the weight of the air column above us. As we go up, the height of air column above us goes on decreasing. It has been found that on an average, for every 12-meter height, the atmospheric pressure decreases by 1 millimeter. When an aneroid barometer is directly calibrated to show altitude, it is called altimeter. देखिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द एयर कॉलम विच इज़ अबव अस, राइट. तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जो हाइट है एयर कॉलम का वो क्या होता है? इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो ऐसा पाया गया है कि देखिए ऑन एन एवरेज हर 12 मीटर हाइट पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है बाय 1 मिलीमीटर. ओके, यहाँ पे आपको दिया गया है एल्टीट्यूड जो मीटर्स में एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. तो जो एनरॉइड बैरोमीटर है उसको डायरेक्टली कैलिब्रेट किया जाता है टू शो एल्टीट्यूड, देन इट इज़ कॉल्ड ऑल्टीमीटर. Atmospheric pressure also changes from time to time. Weather forecast is done on the basis of these changes. Normally, increasing high pressure leads to fair, cloudless sky and dry weather. The gradual fall shows that it is about to rain or snow. If the pressure falls suddenly, it indicates a storm may come. If it falls suddenly to very low, it indicates that cyclone may come. अच्छा, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. तो जो वेदर फोरकास्ट किया जाता है इन चेंजेस के बेसिस पे ही किया जाता है. अगर नॉर्मली हाई प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब फेयर वेदर है, मतलब क्लाउडलेस या ड्राई, क्लाउडलेस स्काई या फिर आपका ड्राई. थोड़ा सा फॉल आता है, ग्रेजुअल फॉल आता है, तो मतलब रेन हो सकती है, स्नो हो सकता है. अगर प्रेशर सडनली गिरता है तो इसका मतलब स्टॉर्म, तूफान आने के चांसेस है. और अगर जो है ये सडनली फॉल हो जाता है बिल्कुल लो पे, तो दैट मीन्स साइक्लोन आ सकता है, राइट. Vacuum, atmospheric pressure and our body. The Latin word vacuum means empty space or space which contains nothing, not even air. Vacuum pumps are used to create vacuum inside a vessel. These vacuum pumps can suck out most of the air but not all. Above a height of 300 km from the surface of Earth, there is almost no air. We call it vacuum. There is vacuum at the moon also, as it does not have any atmosphere. In the vacuum, our bodies will burst due to internal pressure of fluids. Therefore, astronauts wear special suits which maintain same pressure of air between the suit and the body and the pressure inside the bodies. Thus, the bodies will not burst under their internal pressure. At high mountains, the pressure of air outside is less than inside our body. The greater pressure inside the body sometimes cause nose bleeding there. देखिए वैक्यूम का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस. स्पेस मतलब जिसमें कुछ नहीं होता है, आपका एयर भी नहीं. तो वैक्यूम पंप्स को यूज़ किया जाता है वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए. अगर किसी भी वेसल में हमें वैक्यूम क्रिएट करना है, ठीक है, तो ये वैक्यूम पंप्स क्या करते हैं, जितनी भी एयर होती है उसको सक कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द एयर बट नॉट ऑल. 300 किलोमीटर की हाइट पे अर्थ के सरफेस से ऑलमोस्ट कोई एयर नहीं होती है, तो इसे हम कहते हैं वैक्यूम. अब जैसे मून में भी वैक्यूम है क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है,
तो वैक्यूम में जो है हमारी बॉडीज बर्स्ट हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द इंटरनल प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स। तो इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेशल सूट्स वेयर करते हैं जो कि सेम प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं, प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द सूट एंड द बॉडी एंड द प्रेशर इनसाइड द बॉडीज, राइट। तो बॉडीज जो है फिर ये जो इंटरनल प्रेशर होगा इसके अंडर बर्स्ट नहीं करेंगे। हाई माउंटेन्स पे जो प्रेशर होता है ना एयर का आउटसाइड, वो बॉडी के अंदर जो प्रेशर होता है से क्या होता है, लेस देन। तो जो ग्रेटर प्रेशर होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी वजह से कई बार नोज ब्लीडिंग भी हो जाती है हाई माउंटेन्स पर। ओके, key points: if you push or pull an object, you apply a force on the object that may give energy to the object and cause it to begin moving. The metric unit of force is Newton. A force of 1 Newton changes the speed of a kilogram mass by 1 meter per second. A force can make a body move and can stop a moving body. A force can change the shape of an object. When two or more forces act on a body in such a way that the resultant force is zero, the applied forces are called balanced forces. Some force act on a body when the source of force is in actual contact with the body. Such forces are called contact forces. When the source of force is not in actual contact with the body, such a force is called non-contact force. Friction is a force that opposes the motion of an object. Remember that. Pressure depends on the amount of force and the area over which the force is applied. The force that pushes an object in a fluid up is called buoyancy. Atmospheric pressure or air pressure is a measure of the force created by the weight of air pressing down on each square centimeter of the Earth's surface. A barometer is used to measure atmospheric pressure. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।